Hello students, you are welcome to the video lecture series of operating system. In this video lecture, we will discuss another classical problem in concurrency, and that is reader-writer problem. So here we go to start our topic. We will discuss here reader-writer problem and the solution to this problem. So let us discuss reader-writer problem in detail, right? What is reader-writer problem? Let us suppose there is a file or record. This is a file or record that is to be shared among several concurrent processes. बहुत सारे processes के बीच में हमें इस फाइल को शेयर करना है. अब क्या है, कुछ प्रोसेसेस उनमें से रीडर प्रोसेस हैं और कुछ प्रोसेस उनमें से राइटर प्रोसेस हैं, राइट? सो रीडर प्रोसेस और राइटर प्रोसेस दो तरह के प्रोसेसेस है हमारे पास, और हमारा ये क्या है, फाइल क्या है, शेयर्ड ऑब्जेक्ट है, राइट? अब क्या होगा कि प्रॉब्लम क्या आती है कि रीडर, जैसे कि अब ये वीडियो है, इसको आप रीड करें तो बहुत सारे कैंडिडेट साइमल्टेनियसली इस वीडियो को रीड या इस पीडीएफ को रीड कर सकता है, राइट? कंसीडर दिस पीडीएफ. इस पीडीएफ को मैं रीड करने के लिए बोलूँ तो बहुत सारे रीडर प्रोसेसेस इसे रीड कर सकते हैं, बट इफ आई आस्क फॉर राइटिंग तो एक बार में एक ही प्रोसेस राइट कर सकता है, राइट? सेवरल प्रोसेसेस एक साथ राइट नहीं कर सकते. सो द प्रॉब्लम इज कि हमें किस तरह से दोनों में कॉन्करेंसी बैठानी है रीडर और राइटर प्रोसेसेस के बीच में. While reader is accessing this file, then writer is not allowed, and when writer is accessing this file, then reader is not allowed. तो हमें इस तरह से कॉन्करेंसी बैठानी है. एंड द सेकेंड कंडीशन इज व्हाट कि बहुत सारे रीडर्स इस फाइल को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, बट राइटर एक बार में एक ही एक्सेस करेगा, राइट? इट मीन्स हम एक ही राइटर को एक बार में अलाउ करेंगे कि उस फाइल को राइट करे. So this is the problem. Now we will discuss its solution. But before that, let us understand the problem in detail. So suppose a file or record is to be shared among several concurrent processes. एक file है या record है जिसको बहुत सारे concurrent processes एक साथ share कर रहे हैं. Some of these processes may want only to read the content of the shared file, whereas other processes may want to update. Update का मतलब read and write both. They want to perform on the shared object, right? So we refer processes that are interested in only reading as readers and to the rest as writers. जो रीड करना चाहते हैं, जो रीडिंग में इंटरेस्ट है, उनको हम रीडर प्रोसेसेस बोलेंगे, एंड जो बाकी अदर प्रोसेसेस हैं उन्हें हम राइटर प्रोसेस बोलेंगे. सो if two readers access the shared data simultaneously, then no adverse effect will result. जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर बहुत सारे रीडर्स एक साथ रीड कर रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. But if a writer and other reader access the simultaneously, then adverse effect may result. It means writer या फिर कोई other reader writer कुछ भी हो, writer के साथ writer का conflict होगा reader और writer दोनों के साथ, right? So जो writer है, writer conflicting होगा reader और writer के साथ. So it is required that writers have the exclusive access to shared data. ये required है कि जो writers है उनकी shared data पर exclusive access हो, right? So this synchronization problem is known as reader-writer problem. First of all, what this problem wants? First, reader-writer problem requires no reader should wait for the other reader to finish simply because the writer is waiting, right? कि कोई भी reader wait नहीं करेगा दूसरे reader का, क्योंकि दो या दो से ज्यादा reader एक साथ access कर सकते हैं. Second, reader-writer problem requires once a writer is ready, it writes as soon as possible. मतलब हमें writer process को ज्यादा देर wait नहीं कराना है. If writer wants to write, then we will allow it as soon as possible. So there may be 4 possible cases for this reader-writer problem, or we can say the conditions to be followed to provide synchronization between reader and writer. Reader और writer के बीच में synchronization provide करने के लिए there may be 4 possible cases. The first case is reader and writer. So the first case is if a reader is reading, then writer is not allowed. So a writer is crossed, right? So a writer is not allowed to write into data because it is already occupied by the reader. अगर reader ने already occupied कर रखा है data को तो writer write नहीं कर सकता. Second condition could be if reader is reading or reader is already accessing the database. Reader is accessing the database, then another reader is allowed. दूसरा reader यहाँ पर allow है, right? रीडर के साथ राइटर अलाउ नहीं है, बट रीडर के साथ रीडर अलाउ है, राइट? थर्ड कंडीशन कुड बी राइटर के साथ रीडर अलाउ नहीं है. इफ राइटर इज एक्सेसिंग द डेटाबेस,
then reader is not allowed. And the last condition is there are 4 possible conditions. If writer is accessing the database, then another writer is not allowed, right? So रीडर के साथ केवल रीडर अलाउ है और राइटर के साथ रीडर अलाउ नहीं है, राइटर के साथ राइटर भी अलाउ नहीं है, राइटर के साथ रीडर भी अलाउ नहीं है. So this there are 4 conditions that must be followed. So now we will discuss its solution. How can we provide the solution to the problem? Our solution, we will use 3 variables. First is write, WRT variable. This is a semaphore variable, right? It is an integer variable. तो ये हम write semaphore write use करेंगे. That is common to both reader and writer process. Reader और writer दोनों के लिए ये common है ये variable, right? और ये क्या है, एक तरह का semaphore है. Then mutex, mutex भी एक semaphore है, 2 semaphore use कर रहे हैं हम यहाँ पर. Mutex semaphore is used to ensure mutual exclusion when variable read count is updated. जब read count update होता है उस टाइम पर mutex यूज होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंश्योर करने के लिए. एंड द थर्ड वेरिएबल इज रीड काउंट. दिस वेरिएबल कीप्स ट्रैक ऑफ हाउ मेनी प्रोसेस आर कॉन्करेंटली रीडिंग द ऑब्जेक्ट. कितने प्रोसेस एक साथ कॉन्करेंटली ऑब्जेक्ट को रीड कर रहे हैं. सो रीड काउंट क्या चेक करता है, रीड काउंट काउंटिंग करता है कि कितने प्रोसेसेस एक साथ अभी करंटली रीड कर रहे हैं, राइट. म्यूटेक्स एक सीमाफोर है जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंश्योर करता है. एंड राइट सीमाफोर दोनों प्रोसीजर के लिए कॉमन है, रीडर और राइटर दोनों प्रोसेसेस के लिए कॉमन है. Semaphore write functions as a mutual exclusion semaphore for the writers. ये जो write semaphore है ये mutual exclusion ensure करता है writers के लिए. It is also used by first or last reader that enters or exit the critical section. पहले और last reader के through भी ये access होता है जो कि first of all सबसे पहले और सबसे last में critical section execute करता है. So भी हम डिटेल में access करेंगे. There are only 3 variables out of which 2 are semaphores. राइट एक सीमाफोर वेरिएबल है, म्यूटेक्स एक सीमाफोर वेरिएबल है, राइट. राइट जो वेरिएबल है वो रीडर और राइटर दोनों एक्सेस कर रहे हैं. म्यूटेक्स सीमाफोर म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंश्योर कर रहा है. और रीड काउंट सीमाफोर नहीं है बट रीड काउंट एक वेरिएबल है जो ये ट्रैक रख रहा है कि कितने प्रोसेसेस एक साथ कॉन्करेंटली रीड कर रहे हैं. सो नाउ वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन. नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ राइटर प्रोसेस. अगर हम राइटर प्रोसेस की बात करें, सो व्हाट कुड बी द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ राइट प्रोसेस. जब भी राइटर प्रोसेस एक्सेस आना चाहता है तो राइटर प्रोसेस क्या करेगा, एक बार में एक ही राइटर प्रोसेस आ सकता है, राइट. इट मींस राइटिंग केवल एक ही होगी. सो क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं हम वो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए यूज कर रहे हैं. और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि व्हेनेवर सीमाफोर इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम तब हम इनिशियलाइज करते हैं सीमाफोर वेरिएबल की वैल्यू 1 से. इज दैट क्लियर. सो सीमाफोर की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज होगी. तो यहाँ पर वेट हमने लगाया. लेट्स से राइटर 1 एक्सेस करना चाहता है और राइटर 2 भी है हमारे पास, राइट. तो हमारे पास बहुत सारे राइटर हो सकते हैं. तो मैं भी राइटर 1 और 2 की बात कर रही हूँ. तो 1 राइट करना चाहता है तो 1 क्या करेगा, वेट ऑफ राइट क्या करेगा, इसकी वैल्यू को 0 कर देगा. जैसे ही इसकी वैल्यू 0 हुई तो राइटर 2 अगर ये राइटर की वेट राइट क्या करेगा, वेट राइट इसे 1 से 0 कर देगा. और अब ये आ जाएगा राइटिंग इज परफॉर्म. इट मींस राइटर 1 इज राइटिंग, राइट. अब दिस इज द क्रिटिकल सेक्शन बिकॉज राइटिंग इज द क्रिटिकल सेक्शन एरिया, राइट. तो अगर राइटर 2 राइट करना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो इस रेट ऑफ राइट करेगा. बट राइट ये तो ऑलरेडी 0 है तो ये और उसको डिक्रीमेंट नहीं कर सकता. सो ये स्टक हो जाएगा, राइट. राइटर 2 जो है यहाँ पर स्टक हो जाएगा और ये आगे राइटिंग में नहीं परफॉर्म कर पाएगा. सो हियर दैट इज एंश्योर्ड कि एक बार में एक ही राइटर राइट कर सकता है. सो व्हेन राइटर 1 इज राइटिंग, राइटर 2 इज नॉट अलाउड. सो राइटर 1 का जब काम कंप्लीट हो जाएगा अब तो वो सिग्नल ऑफ राइट कर देगा. सिग्नल ऑफ राइट का मतलब है इसको अगेन 1 सेट कर देगा. और जब ये 1 सेट होगा तब आप राइटर 2 यहाँ से निकलकर राइटिंग परफॉर्म कर सकता है. यानी कि एक बार में हमने ये इंश्योर किया कि राइटर ये जो राइट वेरिएबल राइट सीमाफोर है ये राइटर के लिए किसको म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंश्योर कर रहा है, राइट. राइटर प्रोसेसेस के लिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन की इंश्योरिटी दे रहा है WRT सीमाफोर, राइट. सो राइटर प्रोसेस के लिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंश्योर्ड है. नाउ this is the structure of reader process. If you want to see the structure of reader process, so what could be the structure? First of all, weight of mutex. अभी जो mutex वेरिएबल है इसकी वैल्यू कहाँ से 1 से इनिशियलाइज होगी. जैसे राइटर एक सीमाफोर था, राइट WRT एक सीमाफोर था, उसकी वैल्यू 1 से इनिशियलाइज थी. हियर म्यूटेक्स भी म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंश्योर करेगा रीडर प्रोसेसेस के बीच में तो इसकी वैल्यू भी 1 से इंश्योर होगी, राइट. तो अब वेट म्यूटेक्स हमने अप्लाई किया, रीड काउंट प्लस प्लस किया. रीड काउंट प्लस प्लस मतलब रीड काउंट आपका 0 से स्टार्ट होगा,
तो ये 1 हो जाएगा। इट मीन्स पहला रीडर आपका हो चुका है, राइट। अब इफ रीड काउंट इज इक्वल टू 1, अगर रीड काउंट 1 है तो राइट पर हम वेट लगा दें। इट मीन्स रीडिंग प्रोसेस इज अलाउड, सो राइटर शुड बी वेटेड। राइटर आपका वेट करेगा, राइट। इट मीन्स जब रीडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है तो राइटर आपका वेट करेगा, राइटर एंटर नहीं कर सकता। एंड देन व्हेन रीडिंग इज परफॉर्म देन इट विल सिग्नल म्यूटेक्स। ये म्यूटेक्स को सिग्नल दे देगा, राइट। म्यूटेक्स को सिग्नल देने का मतलब है कि ये जो आपका 1 से वेट म्यूटेक्स 1 था, वेट म्यूटेक्स क्या कर दिया था उसने, इनिशियली 0 कर दिया था। इस वेट म्यूटेक्स ने इस वेरिएबल को 0 कर दिया था। अब ये सिग्नल म्यूटेक्स कर देगा, इट मीन्स इसे सेट कर देगा 1। और जैसे ही इसे 1 सेट करेगा तो ये दूसरा प्रोसीजर भी यहाँ पर एंटर कर सकता है, राइट। दूसरा प्रोसीजर यानी कि दूसरा रीडर प्रोसेस, जैसे अब कि हमने कहा था कि रीडर प्रोसेस एक साथ बहुत सारे रीड कर सकते हैं, रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो कंसीडर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर रीडर 1 आया था। अब रीडर 1 आने से पहले उसने क्या किया था, म्यूटेक्स को सिग्नल कर दिया था। म्यूटेक्स को सिग्नल करने का मतलब है कि उसने 0 से 1 कर दिया था। तो अगर ये 1 हो चुका था तो दूसरा रीडर भी यहाँ पर आ सकता है, इट मीन्स रीडर 2 भी आ सकता है, एंड सो ऑन। रीडर 3 भी आ सकता है, रीडर 4 भी आ सकता है, राइट। बहुत सारे रीडर एक साथ रीडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। सो दिस इज द क्रिटिकल सेक्शन वेयर too many readers can read the record. So reading is performed. Now what will happen, अब ये म्यूटेक्स को वेट कराएगा, देन रीड काउंट को डिक्रीमेंट करेगा। जब प्रोसीजर रीडिंग परफॉर्म करते रहेंगे तो परफॉर्म करने के बाद वो इस कोड को फॉलो करेंगे, यानी कि एग्जिट करेंगे, राइट। तो म्यूटेक्स को वेट कराएंगे, रीड काउंट को डिक्रीमेंट कर देंगे। देन इफ रीड काउंट इज 0, अगर रीड काउंट आपका 0 हो जाता है, इट मीन्स जब सबसे लास्ट रीडर जो है आपका वो बाहर जा रहा है, तो उस केस में हम राइटर प्रोसेस को सिग्नल कर सकते हैं, राइट। कि अब रीडिंग परफॉर्म हो चुकी है, अब राइटर अपना वर्क परफॉर्म कर सकता है, एंड देन वी विल सिग्नल म्यूटेक्स व्हाइल ट्रू, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर रीडर प्रोसेस। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर देखा कि सीमाफोर की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज होती है फॉर सॉल्विंग क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो म्यूटेक्स और जो राइट वेरिएबल है उनको हमने 1 से इनिशियलाइज किया था, वेयरएज रीड काउंट इज इनिशियलाइज विद 0 से इनिशियलाइज किया था, राइट। तो हमने रीडर राइटर प्रोसेस का यहाँ पर सोल्यूशन देखा कि किस तरह से आप यहाँ पर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको क्लियर होगा। So much students for watching this video. Do like the video, share the video and subscribe the channel.